बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है? सर बाइनरी सर्च ट्री में ये होता है कि जो भी लेफ्ट साइड वाला नोड होता है वो हमेशा रूट से छोटा होता है, और जो राइट वाला होता है वो रूट से बड़ा होता है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। हीप और जो बाइनरी सर्च ट्री है दे बोथ आर बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की कैटेगरी में ही आती है। बाइनरी सर्च ट्री इज आल्सो बाइनरी ट्री एंड हीप इज आल्सो अ बाइनरी ट्री बट विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। बाइनरी सर्च ट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? द लेफ्ट नोड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रूट नोड एंड राइट चाइल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रूट। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनरी सर्च। आज का हमारा टॉपिक है हीप डेटा स्ट्रक्चर। हीप में क्या होता है? Heap is a special case of balanced binary tree data structure where the root node key is compared with its children and arranged accordingly. अब होता क्या है? Heap is of two types. It can be max heap. It is also one type is called as max heap. Another type is called as min heap. Max heap means maximum heap. Min heap means minimum heap. होता क्या है? इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वही है जो रूट की वैल्यू है उसको चाइल्ड की चिल्ड्रन की वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। इन दिस फर्स्ट एग्जांपल लुक एट दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर। दिस इज द मिन हीप। मिन हीप में क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द रूट इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। जो रूट की वैल्यू है वो उसके दोनों चिल्ड्रन से स्मॉलर होती है इन केस ऑफ मिन हीप। And in case of max heap, this is an example of max heap. Look at this tree structure. The value of the root is always greater than both of its children. This is the max. Now, see the difference between the binary search tree and heap. Binary search tree में क्या होता है? Left node is smaller than root and right node is greater than root. ऐसे स्ट्रक्चर बनता है from left to right, increasing order. But heap में ऐसा नहीं है. Heap के केस में क्या होता है? If heap is a max heap, तो max heap में क्या होता है कि the value of root is greater than both of its children. दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड से जो रूट की वैल्यू है वो बड़ी होती है। Look at this structure. 44, root is 44, its left child is 42 and its right child is 35. The value of the root is greater than both of its children. 44 42 से भी बड़ा है और 35 से भी बड़ा है। It means it is a max. और ये सिर्फ रूट के केस में नहीं होना चाहिए। every parent node must be greater than its two children. जैसे 42 को देखें तो 42 के दो चिल्ड्रन कौन से हैं? 33 and 31. 42 is both 33 and look at 35. The two children of 35 are 19 and 27, and 35 is greater than both 19 and 27. Look at this 33. Two children of 10 and 26. 33 is greater than both the children. The value of the parent is, must always be greater than the both of its children. In case of max, if it's a min heap, this is the min heap. Look at this. इसमें क्या होता है? min heap में क्या होता है? The value of the root must be smaller than both of them. जैसे हमारे केस में रूट क्या है? रूट is 10 and its two children are 14 and 19. So 10 is greater than both. The min. Take another note. Look at this 26. The two children of 26 are 44 and 35. 26 is smaller than both 44 and 35. The min heap. This is the max. This is the basic characteristic of heap data structure of heap tree. Heap tree is also a form of binary tree with one special characteristic. That special characteristic defines that the value of the root must be greater than both of its children in case of max heap, and the value of the root must be smaller than both of its children in case of min heap. This is the definition of max heap and min heap. Clear है यहाँ पे? कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर सभी? अब हम एक एरे लेते हैं, यस सर। unordered array, and we will convert that array into the heap, min heap or max heap. In this example, I am going to convert this into min heap. ये हमारे पास array है comprising of 7 elements 20, 17, 32, 5, 19 and 8. इसका हमने सबसे पहले एक ट्री बनाया, जनरल ट्री, एक बाइनरी ट्री। 20 is the root and two children are 17 and 30. 17 and 30 are the two children of 20.
फिर उसके बाद 17 के 2 चिल्ड्रन आ जाएंगे 2 and 5 एंड 30 के 2 चिल्ड्रन आ जाएंगे 19 and 8. So this is the general binary. This is the binary. Okay, it's not a heap and it's not binary search tree. आप देख लो कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम मिन हीप की बात करें तो रूट की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए उसके चिल्ड्रन, बट यहाँ पे 20 17 से बड़ा है 30 से छोटा है, तो it doesn't belong to the heap data structure. So it is a binary tree. Now we will convert this binary tree into min heap. अब min heap में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, we will compare the value of the root with its left child. जो रूट की वैल्यू है उसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे 20 कंपेयर टू 17. इफ द रूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड देन द स्वैपिंग विल टेक. क्योंकि हमें मिन हीप बनाना है. मिन हीप के केस में क्या होता है, स्मॉलर एलिमेंट शुड बी एट द पेरेंट पोजीशन. स्मॉलर एलिमेंट ऊपर होना चाहिए, बड़ा एलिमेंट नीचे. तो हमने 20 को सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड के साथ कंपेयर, 20 is greater than 17, then swapping will take place. Now the root will become 17 and 20 will become its left child. It is represented in this picture. ये पिक्चर है. After swapping 17 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया. पहला स्टेप. अब उसके बाद लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे हमने ये कंपैरिजन करते हैं. अब 20 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे. If the parent is greater than the child, then the swapping will take place. 20 is greater than 2, again swapping will take place. यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस पोजीशन पे 20 ये 17 ऊपर चला गया, पे आ गया 20. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, फिर से रूट को उसके लेफ्ट साइड से कंपेयर करें. 17 इज अगेन कंपेयर्ड विद 2, स्वैपिंग होगी, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा. 2 रूट पे आ गया, यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ क्या था 5. नो 17 इज कंपेयर्ड विद इट्स राइट साइड. यहाँ पे 17 आ गया था, यहाँ पे 5 था. 17 इज ग्रेटर देन 5, अगेन स्वैपिंग विल टेक प्लेस. 5 यहाँ पे ऊपर चला गया और 17 यहाँ पे नीचे आ गया. तो हमारा जो लेफ्ट सब ट्री है दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हमारा मिन हीप बन गया. अब हमने राइट सब ट्री की तरफ देखना है. देखो राइट सब ट्री में क्या है, 30 19 8. जब इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 8 यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, नीचे 19 है 8 19. In this way we have converted the given unorganized array into a minimum heap. इस तरह से हम मैक्सिमम हीप भी बना सकते हैं. जनरलाइज्ड एग्जांपल सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको कि मिन हीप क्या होता है और मैक्स हीप क्या है. क्लियर है? यस सर. अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेज क्या हैं. तो बाइनरी सर्च ट्री आपने किया है तो उसका मेन यूजेज क्या है, मेन जो एडवांटेज क्या है बाइनरी हमें क्या मिलता है, अगर आपने पढ़ा होगा. इंसर्शन वगैरह रिलेशन वगैरह जो टाइम कम लगता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउ टू ठीक है. एक और मेजर है उसमें, एक मेजर मेन पॉइंट है बाइनरी सर्च ट्री का. तो सॉर्टेड ऑर्डर में एरे आता है. इन ऑर्डर में सॉर्टेड है. एग्जैक्टली वही मेन कैरेक्टरिस्टिक है बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री को अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे इट ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट्स द सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे अपने आप, सिर्फ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. अब हीप की प्लस पॉइंट क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ यूजिंग हीप डेटा स्ट्रक्चर. तो इट क्विकली एक्सेस द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट आइटम. इसमें अगर हमने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है या सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है, इट इज द इजीएस्ट प्रोसेस इन केस ऑफ हीप डेटा स्ट्रक्चर. क्योंकि अगर हम मिन हीप की बात करें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज जाता है रूट पोजीशन, सिर्फ रूट को प्रिंट करना है तो मिनिमम एलिमेंट हमें मिल जाएगा. अगर हमारे पास मैक्स हीप है तो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलवेज लाइज एट द रूट पोजीशन. तो रूट को प्रिंट करेंगे तो लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा. तो दिस इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग द हीप डेटा. उसका सेकंड क्या है, स्पेस एफिशिएंट. स्पेस एफिशिएंट कैसे है, नॉर्मली जो हीप है दैट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे. तो एरे के केस में हमें पॉइंटर वेरिएबल स्टोर नहीं करना.
स्टोर द ट्री यूजिंग लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट के केस में हर एक नोड के साथ 2 पॉइंटर वेरिएबल भी स्टोर करने पड़ते हैं, उसमें मेमोरी वेस्ट है हीप के। अब इसका वीकनेस क्या है? लिमिटेड इंटरफेस, बाइनरी हीप ओनली प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट आइटम, फाइंडिंग अदर आइटम इन हीप टेक्स ऑर्डर ऑफ। अगर हमें कोई और नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट को छोड़ के, तो वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा नंबर ऑफ आइटम, तो सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे, रूट के साथ करेंगे, फिर रूट के बाद उसके छोटा उससे बड़ा कहाँ जाना, तो वो ऑर्डर ऑफ एन का टाइम ही लेता है। दिस इज द मेन वीकनेस ऑफ द हीप डेटा यूजेस। हीप डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन प्रायोरिटी क्यूज, क्यू के चैप्टर में लिया होगा हमने, प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हीप का यूज होता है, बट द मेजर यूजेज ऑफ हीप इज हीप सॉर्ट, सॉर्ट एन एरे यूजिंग, तो हीप सॉर्ट। नाउ ऑपरेशंस ऑन मैक्सिमम, हम मैक्स हीप की बात करेंगे, तो इसमें 3 ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, फाइंडिंग मैक्सिमम, इंसर्शन एंड डिलीशन, ये 3 ऑपरेशन हमने करने हैं इसके। फर्स्ट ऑपरेशन इज फाइंडिंग मैक्सिमम, फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ हीप, मैक्स हीप इज वेरी इजी, क्योंकि मैक्स हीप में जो रूट है दैट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द हीप, तो वो सिंपली हम रूट को प्रिंट करेंगे तो लार्जेस्ट एलिमेंट। सेकंड इज इंसर्शन, एक मैक्स हीप के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू अ हीप ट्री स्ट्रक्चर। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, ये ट्री है, हीप है, दिस इज हीप, आप देख लो इसमें ये मैक्स हीप है, रूट इज 90, 90 इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन 89 एंड 70, इसी तरह से हर एक पेरेंट अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा, दिस इज द मैक्स। अब अज्यूम करते हैं हमारे पास ये मैक्स हीप है यहाँ 75 और 15 तक, and we have to insert a new element 85. Consider the max heap and insert a new node with the value 85. हमारे पास मैक्स हीप गिवन है, हमें एक नया नंबर दिया है, उस नंबर को हमने अपने हीप में इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने का प्रोसीजर क्या है? हम हर एक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर नहीं करते जाएंगे, रूट के साथ कंपेयर किया, फिर नीचे कंपेयर किया। हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? द फर्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एल्गो ऑफ दिस इज insert the new element that is to be inserted at the end of the heap. हीप के लास्ट में उस नंबर को ऐड कर दो जिसको इंसर्ट करना है। तो हमने 85 ऐड करना था, 85 को हीप के एंड में इंसर्ट कर ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा हीप में लास्ट एलिमेंट था 15, 75 और 15, 75 का राइट चाइल्ड मिसिंग था, तो राइट चाइल्ड में नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 85, उसको हमने इंसर्ट किया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसको हीप के लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले उसको अपने पेरेंट, उसका जो पेरेंट नोड है उसके साथ कंपेयर करना है। अगर उसकी वैल्यू अपने पेरेंट से ज़्यादा है तो हमने स्वैपिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। 85 हमने यहाँ पे डाल दिया, 85 का पेरेंट क्या है 75, 85 को 75 के साथ कंपेयर करें। इफ द वैल्यू ऑफ दिस नोड इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट वैल्यू देन वी विल डू द स्वैपिंग। अगर जो नीचे वाली वैल्यू है अपने पेरेंट से बड़ी है तो हमने उसको स्वैप करना है। तो इस केस में 85 इज ग्रेटर देन 75, तो क्या होगा 85 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। इट विल लुक लाइक दिस। स्वैपिंग करने के बाद 85 ऊपर चला गया, 75 नीचे आ गया। ठीक, हमने सिर्फ 85 को पकड़ के रखा, मैं किसी और एलिमेंट को नहीं देखा। अब 85 को क्या करना है, इस 85 को फिर से कंपेयर करना है विद इट्स प्रेजेंट पेरेंट, जो इसका अब पेरेंट है, अब उसके साथ इसको कंपेयर करना। अब 85 का पेरेंट क्या है 89, अब 85 को 89 के साथ कंपेयर करेंगे। 85 इज स्मॉलर देन 89, अब ग्रेटर नहीं है तो स्मॉलर मींस हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, तो जी ऐसा ही रहेगा, ई ऐसा ही रहेगा। 85 हैज कम एट इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन, 85 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट हो। फाइनल इंसर्शन के बाद हीप हमारा ये बन गया, 90 अपनी पोजीशन पे रहा, 89, 70, 36, 85। In this way, we can insert a new element into the heap. हीप के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करने का तरीका क्या है कि जो नया एलिमेंट है उसको हीप के लास्ट में ऐड करना है सबसे पहले, फिर उसको 1 बाय 1 अपने करंट पेरेंट के साथ कंपेयर करते जाना, तब तक कंपेयर करते जाना जब तक उसकी वैल्यू अपने पेरेंट से स्मॉलर हो। इज इट क्लियर? यस सर।
अनामिका आवाज आ रही है? यस आ रही है। क्या क्लियर है? इंसर्शन हो गया, इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट इज डिलीशन, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ मैक्स। अगर मैक्स हीप में से हमने रूट को डिलीट करना है तो वी कैन इजीली डिलीट द रूट का। हमारे पास पहला एड्रेस होता है, उसकी लोकेशन अगर एरे है तो उसकी लोकेशन हमारे पास होती है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे तो हो जाएगा। बट अगर हमने लास्ट नोड डिलीट करना है या बीच वाला करना है या पहले वाला करना है, तो उस केस में क्या होगा? तीन चार का डिफरेंस स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आप मेथड समझ लो। ये है हमारे पास मैक्स हीप है, ठीक है। इसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे हम। ये था हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में, एक ट्री था, इस ट्री को लेंगे, हीप को लेंगे, तो इसमें हमने नोड को डिलीट करना है। अब बहुत सारे नोड हैं इसमें, अगर हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है तो लास्ट नोड इज 75, लास्ट नोड हमारे पास 75 है, तो लास्ट नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो इजीली डिलीट हो जाए। उसमें हमने कुछ नहीं करना, जो लास्ट एलिमेंट है एरे का उसको डिलीट कर देना है और कोई पोजीशन मूव नहीं करनी, चेंज नहीं करनी। अगर हमने रूट नोड को डिलीट करना, हाउ इट कैन बी डिलीट? 90 को हम डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, 90 को डिलीट करेंगे तो नीचे सारा का सारा हमें मैनेज करना पड़ेगा कि रूट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो रूट नोड है उसकी वैल्यू को स्वैप कर लेते हैं विद द लास्ट। अगर हमें रूट नोड को डिलीट करना है या बीच में से किसी नोड को डिलीट करना है, उस नोड की वैल्यू को स्वैप कर देना है विद द वैल्यू ऑफ द लास्ट। तो हमारे पास लास्ट क्या है 75, तो रूट क्या है 90, इसको हम स्वैप कर देंगे, 70 यहाँ पे आ जाएगा रूट नोड की पोजीशन पे और 90 कम्स एट द लास्ट पोजीशन, इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पिक्चर। ये स्वैपिंग के बाद 75 बिकम्स द रूट नोड और 90 बिकम्स द लास्ट। अब इस केस में इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ मैक्स। अब ये एक मैक्स हीप नहीं रहा, जैसे हमने स्वैपिंग कर दी तो मैक्स हीप की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 75 टॉप पे है, 75 इज स्मॉलर देन 89, रूट की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे। हमने पहला स्टेप किया, पहले स्टेप में क्या करना है, रूट की वैल्यू को लास्ट नोड की वैल्यू के साथ स्वैप कर दिया, 90 लास्ट में आ गया, 75 में आ गया। फिर हम लास्ट नोड को डिलीट कर दें, क्योंकि हमें रूट को डिलीट करना था, रूट वाज 90, तो वी वांटेड टू डिलीट द एलिमेंट 90, तो ये लास्ट एलिमेंट आ गया, तो लास्ट एलिमेंट को इजीली डिलीट कर सकते हैं, तो हम 90 को डिलीट करते हैं। 90 को डिलीट करने के बाद 75 टॉप पे रहा, यहाँ पे 90 था, 85 का राइट साइड, वो हमने डिलीट कर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब इसको प्रॉपर पोजीशन पे लेके जाना, 75 कहाँ पे एडजस्ट हो। तो सबसे पहले इसको अपने लेफ्ट चाइल्ड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे, 75 इज कंपेयर्ड विद 89, तो 89 इज ग्रेटर देन 75, 89 75 से बड़ा है, तो इट मीन्स 89 75 का रूट होना चाहिए, 75 नीचे होना चाहिए और 89 ऊपर होना चाहिए। बट एकदम से हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इफ रूट द वैल्यू ऑफ द रूट इज स्मॉलर देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड, तो उसके बाद जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करें। फर्स्ट 75 इज कंपेयर्ड विद 89, ठीक है, 75 को 89 से कंपेयर किया, 89 इज ग्रेटर देन 75, अगर ये ट्रू है तो फिर 89 इज कंपेयर्ड विद इट्स सिबलिंग, सिबलिंग समझते हो, द नोड एट द सेम लेवल। तो फिर 89 को 75 के राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करें, 89 इज ग्रेटर देन 70, ये भी ट्रू है, अगर 89 इससे भी बड़ा है, 89 रूट से भी बड़ा था और 89 लेफ्ट राइट चाइल्ड से भी बड़ा है, 89 को 75 में स्वैप करें। आफ्टर स्वैपिंग 89 ऊपर चला गया और 75 नीचे आ गया। स्टेप अच्छे से समझ लो, हमने क्या किया, रूट को लेफ्ट चाइल्ड के साथ कंपेयर किया, इफ रूट इज स्मॉलर देन लेफ्ट चाइल्ड, अगर रूट की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से छोटी है तो एकदम से स्वैप नहीं कर देना है, फिर जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको राइट चाइल्ड की वैल्यू के साथ भी कंपेयर करना है, चेक करना है कि वेदर द राइट चाइल्ड इज आल्सो स्मॉलर देन द लेफ्ट चाइल्ड और नॉट। अगर वो राइट चाइल्ड भी उससे छोटा है तो फिर उसके बाद स्वैपिंग करना है, अगर छोटा नहीं है तो फिर राइट चाइल्ड के साथ करना है। तो यहाँ पे स्वैपिंग के बाद 89 ऊपर चला गया, 75 नीचे आया। अब हमने
75 को ही पकड़ के रखना है। हमारे फोकस में 75 है, क्योंकि 75 को हमने उसकी प्रॉपर पोजीशन तक लेके जाना है। अब 75 को किससे कंपेयर करेंगे? 36 के साथ। हमेशा स्टार्ट करना है, रूट को लेफ्ट से कंपेयर करो, फिर उसके राइट से कंपेयर करो। 75 को 36 से कंपेयर किया, बट इन दिस केस 75 इज ग्रेटर देन 36। 75 जो है वो 36 से बड़ा है इस केस में, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 75 को 85 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो लेफ्ट चाइल्ड से ऑलरेडी बड़ा है तो लेफ्ट चाइल्ड को हमने कंसीडर नहीं करना है, फिर उसके राइट चाइल्ड के साथ उसको कंपेयर कर देना है। अब राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करेंगे, नो 75 इज कंपेयर्ड विद 85, नाउ 85 इज ग्रेटर देन 75, तो इस केस में वी विल परफॉर्म द स्वैपिंग। तो 85 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। 85 comes at this position, 75 comes at its right child position। हो गया, 75 यहाँ पे आ गया। अब फिर अगेन 75 इज कंपेयर्ड विद इट्स लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि इसका राइट चाइल्ड तो अब है ही नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड के साथ कंपेयर करेंगे। 75 is compared with 15, it is already in proper position because 75 is greater than 15, no swapping will take place। तो ये हमारा हीप हो गया आफ्टर डिलीशन, ये इस स्ट्रक्चर है। अब 75 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। तो इन दिस वे द डिलीशन टेक्स प्लेस इन अ हीप ट्री स्ट्रक्चर। अब आप देख लो, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट? कोई भी क्वेरी, किसी को कुछ भी पूछना हो? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir.